जितना मैंने लाइक सुना है, लोग बोलते थे कि आप ऐसे कोई ड्रग एडिक्ट हो, मैंने वो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में आपको, बट आपको ऐसा रियली कंपैशनेट और एक लविंग आदमी। नहीं, मैंने ड्रग्स करे होंगे. आई वुड लाइक टू पुट दिस थिंग क्रॉस. Definitely, I have been through a lot of shit. Hello, everyone. So today I am here to put across something which will solve a dual purpose. Basically, it's not just about someone standing in their own truth, but it's also about putting across some things which happens generally in the society or communal spaces, community spaces, or the neighborhood. But we tend to, we are a victim of that. बहुत सारे लोग होते हैं because they want to frame someone. Many people or many children go through this thing where they become the scapegoat of the community. कि भाई कुछ भी हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो उस पर ठीक रहा, जो फोड़ना है वो उसके ऊपर फोड़ दिया. Because they need someone to blame, they need someone to have that gossip, they need someone to be there for taking the accountability or pushing the accountability. So they need to frame someone basically. So this is about that only. Whereas I would want to put across few things, not in the context of a emotional defense mechanism. तो मैं डिफेंसिव होके नहीं कुछ बोल रहा हूँ, बट अपना ट्रूथ मेरे को भी आई थिंक सो आई हैव टू पुट इट अक्रॉस समझाने के लिए. आई डोंट गिव अ फकिंग फ्लाइंग फक एनीवे कि क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज अननेसेसरी परसेप्शन क्यों बनाना किसी के बारे में अगर उसे जानते नहीं हो तो. एंड यू नो आई मीन द पीपल हु सी मी, जो मेरे को देख भी रहे हैं, आप लोग देखते हो जैसे, so you know about this thing that I fucking live a unconventional lifestyle. I live an unconventional lifestyle as in I truly live that. I am not into social norms or something, I am totally confront all these things, challenge the social core status, and I'm like that kind of person, right? I don't go for the normal 9 to 5 job or this thing. And I have done businesses in the past, I have failed also, I have taken my lessons, I have things, and it's my personal things that if I'm fucking depressed, I'm over it, or I'm learning through that, or I am uh, over it, or I decide to do something or to not do something. People are fucking no one to decide something about me or to talk about me or to frame me as someone or something in which I'm not even involved, or to have a perception of me and to carry out that perception and to spread out that perception. सही नहीं है ना? तो मुझे तो यही लगता है कि क्यों बोलना किसी के बारे में इस तरीके से जब हम जानते नहीं है, right? If I fucking have the guts to live in my truth, अपने सच में खड़े रह के जीने का अगर मेरे में गांड में दम है, I am like this, so why the fuck the people they have a fucking problem with that? और अगर प्रॉब्लम है तो you have to look inside yourself. वो आपके अंदर कमी है, मेरे अंदर नहीं है. You have to correct those things in yourself. Just because you are large people in number, और मेरे जैसे शायद बहुत कम लोग होंगे, does not mean that you gonna overpower us. Fucking we are very courageous people, we don't fucking care about it. So हम तो जिएंगे अपने ट्रूथ में. आप सोचो, और आपके जो फेक नैरेटिव्स हैं, आपकी जो फेक पर्सनालिटीज हैं, फेक पर्सोना जो क्रिएट किए गए हैं हम लोगों के लिए या ऐसे जो भी होंगे उनके लिए, तो काम नहीं करेंगे. नॉट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड, राइट? पीपल सी द ट्रूथ. सच्चाई आती है सामने और दिखता है, एंड इट हैज नॉट टू बी स्पोकन बाय वर्ड्स. वर्ड से चीजें नहीं आती, इसलिए शायद मैंने कभी बोला नहीं इन चीजों के बारे में डायरेक्टली, but I was doing my own actions, standing in my own truth by continuous showing up each day for whatever things I was committed to. चाहे वो मेरी अपनी चीजें हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे फिर spreading the good things at the ground level. Because मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर शोशा करने से मैं किसी rather than hiding myself behind some kind of mask जो मैं डॉन कर लूँ या पहन लूँ और ये दिखाऊं कि आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन और समथिंग लाइक दिस, जस्ट बिकॉज कि मैं अघोर पथ में हूँ, मैं अघोर ये दिखा दूं कि मैं अघोरी हूँ और मैं ऐसे जीता हूँ और वही चीज कैरी करूँ. सो आई एम नॉट जस्ट दैट वन थिंग, दैट इज पार्ट ऑफ मी, दैट इज माई फेथ. तो मैं वही दिखाऊं और उसी से ही अपनी पर्सनैलिटी कैरी करके वही पोर्ट्रे करूँ. सो दैट वुड बी सम काइंड ऑफ मास्क दैट आई एम ट्राइंग टू, और उसमें मेरा कोई अटैचमेंट होगा तो वो नहीं है. जस्ट बिकॉज आई हैव प्ले सो मेनी रोल्स, आई हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ एंड एवरीवन डज. ठीक है? सो आई लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. नाउ उसके पीछे नहीं छुपता मैं. I just live who I am. So that does not mean that any one of us would portray me or would try to tell about me that I have a fucking this kind of problem. Fucking, you know what, I recently have gone through some kind of therapy also, whereas I came to know about myself that I am fucking a visionary person who has a great mind and great thinking abilities to
calculate and to think in an unconventional life to bring solutions to those kind of problems which are not even yet understood by the society, that are even emerging. I have those kind of solutions with me, but those things, because that I want to give something good to the society, because I have gone through those things, does not mean that I will be like this. मेरे पास choice थी, if I have faced something, I can be like that. मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी दे दूं. No, but I chose what? To use my knowledge, to use my creativity, to use my skills, to improve, to bring that improvement in the society at the ground level. उसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं थी मुझे कि मैं जाके सोचा करूं या जाके कोई to create a gimmick, या मैं रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे डालूं या किसी ये प्लेटफॉर्म पे. No, I fucking did whatever I just wanted to do. दिखाना कभी पर्पस था ही नहीं. So doing this has led me to here, and today why I am standing here is I have a person with me. First time शायद ऐसा हो भी रहा होगा मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ इसके सामने. He is Madhav. He is a 15-year-old kid and he's studying, and he knows me since last 4 years. 4 साल से ये मुझे जानता है, right? Yes. और 4 साल से he has been living with me. और जब से मुझसे मिला है, he has avoided his, he has left somewhere his friend circle जो था इनका एज ग्रुप का, वो छोड़ दिया है, and he mostly hangs around with me because he enjoys those kind of things, probably talking to me, जो भी है. I would like to understand from his point of view कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. ठीक है, एक वो चीज. एंड दूसरी, बेटर है ना कि बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि इसके मन में क्या है, दिमाग में क्या है, और मैं क्या हूँ क्या नहीं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, रादर देन पीपल हैविंग परसेप्शंस अबाउट मी जो मुझे जानते ही नहीं है, राइट? तो वो ज्यादा इजी रहेगा. और या सो दैट्स गोना बी क्लियर मैसेज. और इससे यही जरूर हो सकता है कि देखो, ये मैं अपने को प्रूव करने के लिए भी नहीं कर रहा, बट मे बी शायद किसी और की रियलिटी, इसके जो अपने चैलेंजेस रहे हैं या इसने जो भी कुछ फेस किया है, जो कुछ बताएगा अपने बारे में, उससे हो सकता है किसी की भी लाइफ सुधर जाए, या कोई उस फेज से गो थ्रू कर रहा हो, उसे कोई मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ यार मैं ऐसा कर सकता हूँ. ठीक है, सो दैट्स गोना हेल्प इन दिस मैनर. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. एंड ओके, सो माधव, यू नो मी सिंस लास्ट 4 years, राइट? ऑलमोस्ट. तो 4 साल हो गए भाई. आप खुल के बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी एज अ पर्सन. क्या जानते हो? मैं एक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल जीता हूँ, पता है आपको, ठीक है? काइंड ऑफ पर्सन है मैं. कोई जॉब नहीं जाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, अपना फिटनेस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ. सो आई वुड वांट टू नो, अपने शब्दों में आप ये बताओ, सिंपल फ्री होके एक बिल्कुल, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज मी एज अ पर्सन. मैं कैसा इंसान हूँ, एंड ब्रिंग दोस थिंग्स आउट एक बार अपने हिसाब से, अपने दिल से. सो भैया, आप ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, जितना मैंने ऐसे देखा है. मैंने लास्ट 2 साल में अपने जो पहले मेरे एज का फ्रेंड सर्कल जो था, उसको मैंने छोड़ दिया. उसका भी एक रीज़न ये था कि जो मेरे दोस्त थे वो लोग मेनली मैनिपुलेशन और इन सब चीज़ों में थे. मतलब उन लोगों को सच वगैरह और इन सब उन्हें, मतलब they used to abuse me, they used to bully me because of my weight, because of my household. There was a lot of things जो मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को बुली करा है. बट आप इकलौते थे जिसने मेरी बात पूरी सुनी, मेरी बात को समझा, मुझे उस चीज़ के मतलब उस चीज़ से निकालने की मतलब कोशिश करी, हेल्प करा, मेरे को गाइड करा आपने. आप बहुत ज़्यादा, मैंने जितना आपको देखा है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, बहुत ज़्यादा लाइक नेचर से बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो. और जितना मैंने लोगों से सुना है आपके बारे में, वो तो बिल्कुल नहीं है. जितना मैंने लाइक सुना है, लोग बोलते थे कि आप ऐसे कोई ड्रग एडिक्ट हो. मैंने वो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में आपको, बट आपको एज अ रियली कंपैशनेट और एक लविंग आदमी देखा है. आपने हेल्प करी, मेरे को गाइड करा है इन सब चीज़ों के थ्रू निकलने से. नहीं, मैंने ड्रग्स करे होंगे. आई वुड लाइक टू पुट दिस थिंग क्रॉस. डेफिनेटली आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ शिट. उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा इन सम, इफ आई वांट टू शेयर माय थिंग्स, एंड इफ समबडी वांट्स टू नो अबाउट मी, वी कैन कनेक्ट, एंड आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड शेयर. मैं अपने साथ जो ऑडियंस कनेक्टेड है, जो है भी, मतलब उनको मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज वो मेरी अपनी जर्नी है, वहां से मेरे क्या लेसन्स थे, और वो जरूर उन लोगों के काम आएगा जो इस जर्नी में अभी भी अटके हुए हैं. तो आई विल वांट टू हेल्प देम. तो वो एक अलग चीज है, बट आई हैव बीन थ्रू दैट. ऐसा नहीं है कि नहीं, बट क्या उस चीज का इम्पैक्ट मैंने आपके ऊपर आने दिया? डिड आई एवर आस्क यू टू फकिंग इवन ट्राई सुपारी भी, कुछ भी, वॉट एवर, बेसिक से बेसिक थिंग भी, सिगरेट का भी मैंने बोला कि यू स्मोक, ट्राई दिस. आपने कभी भी मेरे को फोर्स नहीं करा कोई भी ड्रग या फिर कोई भी ऐसी चीज को ऐसे ट्राई करने में. कभी बोला भी? फोर्स तो छोड़ो, कभी आस्क भी. उसके अलावा आपने करा क्या कि मेरे को चीजों से दूर समझाया कि ये सारी चीजें क्यों नहीं करनी चाहिए. और जबकि अगर देखा जाए, जो मेरे दोस्त हैं वो लोग तो वेब्स वगैरह इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा ऐसे अब ओपन हो गए हैं, वो
खुद जबरदस्ती मेरे को मेरा एक इंसिडेंट था, मेरे दोस्त ने मेरे को जबरदस्ती वेब ट्राई करवाया था, और जब मतलब मेरे को नहीं करना था, बट वो मेरे को कूल बनने के लिए वहाँ पे दिखाने के लिए करना पड़ा। पर भैया आपने कभी मेरे को ऐसे कभी भी बोला नहीं, कोई भी ऐसे ड्रग को यूज करने के लिए आपने मेरे को उनसे दूर और करा है, Okay. समझाया है कि कितने बुरे होते हैं वो। हाँ, तो और अनकन्वेंशनल, और ठीक है आपने बताया कि मैं जैसे भी आपने मेरे नेचर के बारे में बताया, और क्या ऑब्जर्व करा आपने मेरे बारे में जो आपको लगा दो इस 4 साल में आपने क्या देखा, क्या आपने चेंजेस देखे अपने अंदर, क्या सीखा आपने, क्या लगा आपको? आप ना आपने जो अभी अपने लाइफ में लेसन्स लिए हैं, अब से आपको- इसलिए बता रहे हो फॉर द एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ द सोसाइटी एंड द कमिटी मेंबर्स आल्सो, उनको भी पता होना चाहिए ना, और आपके पेरेंट्स भी हाँ जी। पता होना चाहिए भाई सबको सच क्या है, क्या मैंने आपको सिखाया, क्या बताया, वो सबके सामने सच आना चाहिए। इसलिए तो आपने जो भी लेसन्स वगैरह और जो भी हार्डशिप्स अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आप दूसरों को उसके थ्रू हेल्प करते हो। सो मेरे घर में भी एक ऐसा टॉक्सिक सा ही इन्वायरमेंट था जिसमें आई यूज टू गेट मैनिपुलेटेड इनटू, मतलब मम्मा आती थी एंड मतलब मैं उनकी बातों में मैनिपुलेट हो जाता था, एंड वो मेरे को कंट्रोल करती थी, वो पूरा पता करना चाहती थी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है तो उसमें वो सबको जानती है पर्सनली, अलग से उनको बुला के पूछती क्या हो रहा है, वो एक हमेशा से चेक रखना चाहती थी मेरे पर वो ऊपर तो से। पर वो तो माँ बाप है ना, माँ बाप तो केयर करते हैं बच्चों की उनको, और तुम वैसे भी अपनी एज से बड़े वाले के साथ घूम रहे हो इंसान के साथ, तो दे हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स दैट एंड दे हैव अ कंसर्न, दे हैव अ केयर टुवर्ड्स यू, तो इसके लिए चेक रखते हैं, तो उसमें कंट्रोल रखने जैसी क्या बात होगी? इवन जो मेरे एज वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी अगर उनको मतलब मेरे हिसाब से अगर इतना ही वो है, कंपैशन है, इतना प्यार है, आप चेक रख रहे हो, मेरे से डायरेक्ट क्यों नहीं कभी कंसल्ट करा, मेरे से कभी डायरेक्ट क्यों नहीं बात करी। मतलब होता क्या था कि मेरे दोस्तों से बात करती थी और मेरे को नहीं पता रहता था कि ये सारी बातें हुई हैं, उनको सब पता रहता था कि नीचे एज इन दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, गेम्स वगैरह में क्या हो रहा है, किसने किसको लड़ाई करी, वो सब कुछ पता रखती थी, और मेरे को कुछ नहीं पता था ये सब कि मेरे दोस्तों से बात कर रही हैं, मेरी पीठ पीछे बातें वगैरह हो रही हैं। और वो करती क्या थी, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बच्चा है जिसको वो उनको अच्छा नहीं लगता, कोई फॉर एक्स रीजन कोई है, वो मेरे को कंट्रोल करती थी, मेरे को अपने जो थॉट्स थे वो मेरे में डालती थी कि नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, वो ऐसे कंट्रोल करती थी मेरे को। और मैं भी क्या बोलते हैं, मेरे भी जो दोस्त थे हम लोग ऐसे 4-5 बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम लोग ज़्यादा बड़ा ग्रुप था नहीं हमारा, तो हम अगर 5 दोस्तों को भी मैंने अपनी बात बता दी जो मम्मा की थी, तो वो तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको तो हटा दिया ना हमने ग्रुप से। तो जैसे मम्मा को जो चीज़ चाहिए थी वो मेरे थ्रू इम्प्लीमेंट करवाती थी ग्रुप में। क्या चीज चाहिए थी? मतलब उनको जैसे कोई बच्चा नहीं अच्छा लगा, और या फिर उनको लगा कि ये अच्छा नहीं है, कुछ भी जैसा लगा, तो वो मेरे को बोलती थी, और मेरे को बोलती रहती थी, तो मेरे को लगता था कि वो जेन्युइन कंसर्न है या फिर उनको मेरे से ज़्यादा पता है, तो वो क्या बोलती हैं, तो वो बता रही हैं मेरे को। पर उसके पीछे हो सकता है उनका कोई गुड मोटिव भी हो जो तुम्हें ना दिख रहा हो, मैं मतलब जिसके साथ भी तो क्यों करना चाहेंगी ऐसा? ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए ना, उनको क्या बेनिफिट है इस चीज से? उनको जो भी मतलब जो ऐसा था कि जो उनको सब कुछ बता रहे हैं नीचे का, जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उनके सगे बन जाते थे, समझ रहे हो, और बाकी जो इतने तो वो नहीं थे। बेसिकली तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के अंदर पॉलिटिक्स प्ले कर रही थी और Exactly. खुद हाँ। उसमें एक ऐसा लीडर अपने आप को बना रही थी, और वो भी पीछे तुम्हारे से। थ्रू वो भी? हाँ मेरे थ्रू। हाँ मतलब ठीक है, हाँ। मतलब यू आर जस्ट अ पॉन, प्यादा हो आप, याद हुआ, हाँ। ऐसे यू फेल्ट दैट। यस। चलो एक बार होता है हम गलत परसेप्शन बना लेते, कई बार ऐसा हो सकता है, पर क्या सच में बाद में आपको प्रूव हुआ किसी चीज से, ऐसा क्यों हाँ, लगा? ये एक बार हो गया कि मेरे एज ग्रुप वालों के साथ, देन फैमिली मैटर्स में भी सेम, कहीं ना कहीं किसी और के बारे में कुछ बोल देना जो ऐसा सच नहीं था, और फिर मैं भी एक ऐसी इमेज बना लेता था जैसे मतलब वो फैमिली के थोड़ा सा मैटर, आई वुड नॉट लाइक। चलो ठीक है, फैमिली आप अपना हाँ, पर्सनल मैटर है, ट्यूशन में लगा आपको मार्क्स को लेके कुछ? हाँ ट्यूशन में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि ये क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ये इंसिडेंट, क्योंकि बहुतों के साथ होता होगा, आप अकेले नहीं है इसके अंदर, तो मैं यही चाहूंगा कि अगर उनके साथ भी हो रहा है ऐसा, या उनके माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ अपने बच्चों को करें, तो वो नहीं होना चाहिए, और बच्चों को रियलाइज होना चाहिए, और उनको भी, पेरेंट्स को, कि क्या गलती कर रहे हैं। सो ट्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्कूल का बता देना चाहता हूँ। सो एग्जैक्टली स्कूल में था क्या कि एक ही फ़ोन हुआ करता था पहले, तो मम्मी के पास ही फ़ोन था, सारे स्कूल के ग्रुप्स वगैरह मम्मी के पास हुआ करते थे, तो सारे नंबर मम्मी के पास थे मेरे दोस्तों के। मेरे पीछे से फॉर एग्जांपल मैं आज स्कूल गया हूँ, मेरा कोई होमवर्क है या फिर क्लास वर्क है, क्लास वर्क मैंने करा है, पर उनको शक है कि मैंने नहीं करा पूरा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा हूँ। तो इस शक की वजह से वो मेरे दोस्त को कॉल करती हैं, कॉल करके उससे पूरा होमवर्क और क्लास वर्क वापस मंगवाती हैं। अब उनको एक भी दो भी कुछ भी गलती मिल गई, वो मेरा जो काम मैंने क्लास में करा है उसको फाड़ेंगी और वो अपने हैंडराइटिंग में वापस खुद करेंगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ।
और ये चलो ठीक है, 5th तक चला, 5th तक मेरी ऑनलाइन थी, तो मैंने कहा 5th तक चलो ठीक भी था। देन 6th 7th में मेरे को मेरा खुद का फ़ोन मिला, तो मुझे लगा तब ये बंद होगा, पर नहीं, तब वो और इन सब में लाइक इंडल्ज होने लग गई। तो कोई होमवर्क होता था, वो हर रात को मेरे दोस्त से पूछती थी कि क्या होमवर्क है, उसको हर रोज़ कॉल करती थी, और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि अगले दिन स्कूल में मेरा दोस्त बोलता था कि भाई तेरी मम्मा को बोल कि कॉल मत करे इतना। तो क्यों करती थी वो ऐसा? उनको पता करना था एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और उनको पर मेरे पे भरोसा नहीं था कि अगर वो तुम्हारा होमवर्क कर रही थी तो ये पता करने से ऊपर की बात हो गई। क्लास वर्क को भी चेंज कर रही थी, नॉट ओनली होमवर्क। पर वो क्यों कर रही थी ऐसा? उसके पीछे क्या लगा आपको? या फिर मार्क्स आपके ट्यूशन में अभी मैं लास्ट? वो हाँ, हाँ, उस पे भी ओके। आऊंगा। सो पहले ट्यूशन वाला बताता हूँ आपको। तो हुआ क्या था कि 9th के पेपर्स थे, फाइनल्स। मैं 9th के एंडिंग से स्कूल मेरा कम हो गया था जाना, बहुत सारे रीजन है उसके भी। तो एक दिन पेपर वगैरह जैसे दिखाते हैं। रीजंस आपकी बुलिंग करना है ना स्कूल में? हाँ, मेनली स्कूल में बुलिंग बुलिंग वगैरह, हुई, बॉडी शेमिंग हुई? बॉडी शेमिंग वगैरह हुई, कोई ऐसा दोस्त नहीं था, कोई वहाँ हाँ। पे ऐसा था नहीं, तो तब मैं भैया से बहुत सारी इन सब चीज़ों के बारे में बात करता था। सो एक दिन हमारी टीचर ने पेपर दिखाए, तो अब मेरी मम्मा ने मेरे दोस्त को कॉल करा, पूछा क्या हुआ है स्कूल में। जैसे मैं तो एब्सेंट था उस दिन, तो मम्मी ने उससे पूरा चिट्ठा निकलवाया कि होमवर्क ये है, क्लास वर्क ये है, इस पीरियड में ये हुआ है, इस पीरियड में ये हुआ है। और फिर उस बच्चे ने बताया कि पेपर दिखाए थे। उस बच्चे ने सिर्फ इतना स्टेट करा था कॉल पे कि मैंने मैम ने पेपर दिखाए हैं। मम्मा मेरे पास आती हैं और मेरे को बोलती हैं कि फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर था, मैथ्स के पेपर में मेरे 90% आए हैं। मम्मा मेरे को सीधा ही बोलती हैं। मैंने कहा मम्मा आपको किसने बताया, क्योंकि मैं तो एब्सेंट था। बोलती हैं कि तेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा था। तो मैंने कहा उसने आपको बताया, उसने मेरे पेपर देखे हैं? बोलती हैं हाँ। देन मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार पेपर जब देख लूंगा तब मैं अपनी ट्यूशन टीचर को बताना प्रेफर करूंगा। सो पर उन्होंने वैसा सुना नहीं, उन्होंने सीधा ट्यूशन वाली को कॉल करके बोल देती है कि मेरे ऐसे 90% आए मैथ्स में, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो हुआ क्या, फाइनल्स थे वैसे भी, तो उन्होंने ऐसे बिलबोर्ड वगैरह एंड पोस्टर्स वगैरह छपवाए, जिसमें अपने प्रमोशन के लिए होता है ना, हर ईयर के एंड में प्रमोशन के लिए ट्यूशन वगैरह करते हैं। उन्होंने थोड़े बहुत स्टूडेंट लिए जिनके अच्छे नंबर आए थे विद मेरा, और उसमें 90% करके बता दिया कि मैथ्स में आए थे, जबकि रियल नंबर जो थे वो कुछ 75-76 के अराउंड थे। तो एक तरीके से आपको नंबर वन दिखाने के लिए, या आपको कि आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, एक इमेज बनाने के लिए, बेसिकली एक इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। हाँ जी, हाँ जी। जो ट्रूथ था उसको छुपा के एक इमेज कंस्ट्रक्ट। लेकिन एक बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो छुप रही है। रियल जो वो कहाँ स्टैंड करता है, उसको खुद को वो चीज का असेसमेंट नहीं हो पा रहा उसको, और दिमाग में ये चीज जा रही है कि भाई मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। वो मैनिपुलेशन देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इमेज को अगर चेंज किया जाए, मास्क किया जाए, तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें पीछे की हैं जो है। और ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि खुद अपने माँ बाप क्या करते हैं, जो खुद चीजें रह गई हैं उनकी, खुद लाइफ में अचीव नहीं कर पाए, वो बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं। अगर वो खुद कर उस चीज को जीना, फील करना चाह रहे थे कि कैसा लगता है टॉप पे रहना, लीडर लगना, या जो, तो वो खुद करना चाहिए था उनको, या अभी भी कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे के थ्रू वो चीज जीना चाह रहे हैं और उसमें प्राउड लेना चाह रहे हैं कि बच्चे की तारीफ हो तो उन्हें प्राउड फील हो किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर। तो कितनी गलत चीज है, और कितने ही बच्चों के साथ ऐसा सेम चीज हो रही होगी, राइट? और इसलिए माँ बाप बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, उनका अस्तित्व बिगाड़ रहे हैं। बच्चा कभी अपने आप को रियल वे में पहचान ही नहीं पाएगा कि वो कौन है। दूसरी चीज, मैं एक हाँ, चीज फर्दर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये चीज जो इंसिडेंट था मैथ्स वाला, ये साइंस के पेपर के साथ भी हुआ था। तो इससे ना एक्चुअली मेरे को फील ये हुआ कि मेरे थे 75% थे। तो अब नेक्स्ट ईयर में, जैसे अब मैं 10th में हूँ, 9th की बात थी, अब 10th में जो मेरी ट्यूशन टीचर है वो बोलती है कि तेरे 95 आने चाहिए। तो अब मेरे को 75 से 95 वाला गैप फिल करना पड़ेगा, जो उनके लिए 5% का है, पर मेरे लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उस चीज़ का कि मुझे पता नहीं अब मैं कैसे उनको सच बताऊं या फिर मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, मैं समझ क्योंकि सकता हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा गैप है, और मैं हूँ 80 से 85 वाला, 75 वाला ही स्टूडेंट हूँ। अब मेरे को 95 के लिए एक्सपेक्टेशन है मम्मी पापा को भी और ट्यूशन टीचर को भी, और मम्मी पापा को कोई उसका फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने गलत नंबर बताए हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल सच की तरह ही जी रहे हैं। तो मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि मैं बहुत उसको इंपॉर्टेंट चीज है। 75 से 95 करके दिखाऊं। और अब इसको मेंटेन करना है, वो सोशल सेटिंग का मास्क वहां पे अपने आप को प्रूव करते हुए वहां पे जाना है, वो प्रूव करना है, अपना वैल्यू प्रूव करनी। तो उसकी सेल्फ वर्थ जो है वो खत्म हो गई यहाँ पे, उसकी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई। और कितना बुरी तरह, क्योंकि माँ बाप ने जो बोलना था कर दिया, करना था कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट अगर वो नहीं अचीव कर पाएगा बाई चांस, मैं चाहता हूँ कि मेहनत करे और करे, बट बाई चांस अगर नहीं अचीव कर पाया तो इतना बुरा क्रैश होगा, क्योंकि सब उसको तो उस
प्रॉपर वाली उसमें क्रीम में रहना है और उसी से उसकी वैल्यू है, तो ये लग रहा है। और लाइफ में हर जगह वो सिर्फ भागता ही रहेगा और उस इमेज के पीछे भागता रहेगा जो वो है नहीं असली में, जो वो स्टैंड भी नहीं करता, लेकिन उसको वहां पहुंचना है। क्यों? क्योंकि उस इमेज से उसकी वैल्यू है सोसाइटी में, उसे घर में। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा अभी फेस कर रहा है इतनी छोटी उम्र के अंदर। एंड यही रीजन है कि क्यों लोग भागते रहते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है मैं अपनी लाइफ जी नहीं पाया, बिकॉज वो खुद की लाइफ जी नहीं रहे थे, वो जी रहे थे जो एक एक्सपेक्टेड कैरेक्टर था, एक एवटार जिसे सोचा जा रहा था, कंस्ट्रक्ट किया था, सोचा हमारा आइडियलिस्टिक जो बच्चा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, उसके पीछे भाग रहे थे। गो अहेड। सो ये ठीक होता है। है। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे आपके फादर भी हैं, ठीक है, तो वो सोसाइटी की कम्युनिटी मीटिंग्स वगैरह में जाते रहते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे क्या नहीं चल रहा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं क्लैरिटी के लिए जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर द पर्सन इन्वॉल्व, मैं हूँ, आप हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बिटवीन अस जब हम साथ में होते हैं, वो जरा क्लैरिटी लेके आओ, कि वो रखो सामने कि क्योंकि वहां तो मीटिंग्स में कहा जाता है कि भाई मैं पता नहीं क्या करता हूँ, मैं क्या 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 करता हूँ, क्या आपको करा देता हूँ, या हम क्या क्या हरकतें करते हैं, जो भी है। तो वो क्लैरिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग व्हेन वी आर हैंगिंग आउट, एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाट आर वी वर्किंग अपॉन, कर क्या रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किस चीज पे काम कर रहे हैं, ये चीज। सो फॉर द रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ कि जो मीटिंग्स वगैरह हैं और ये जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ये लोग बात ये करते हैं कि मतलब सिंपल से, अगर जब भी हमें, मैं और भैया उनको कहीं दिखे या फिर और भी हमारे साथ मेरे दोस्त दिखे भैया के साथ, तो वो सीधा यही बोलते हैं कि ये कुछ सिगरेट वगैरह फुका रहा है, फिर कुछ मतलब ये अजम्पशंस पे रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जैसे ये गाइडिंग भैया, मेरे को, मैं उनको जैसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने भैया इकलौते ही हैं जिनके सामने मैं अपनी पूरी प्रॉब्लम रख सकता हूँ, चाहे वो कहीं की भी हो, क्योंकि मेरे को जज नहीं करते और उसका सही मेरे को क्या बोलते हैं, गाइड करते हैं, सही आंसर बताते हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे वो गाइडेंस देते हैं। हम लोग जब भी मेनली हैंग आउट करते हैं तो वो गाइडेंस देते हैं। और मेरे को बहुत टाइम से क्या बोलते हैं, फैटी लिवर वगैरह, जब 2-3 साल पहले हम मिले थे, सो मेरे को फैटी लिवर डायग्नोस हुआ था। तब भी भैया ने मेरे को ट्रेनिंग वगैरह शुरू करवाई थी। तो मेरे को भैया, हम लोग जब हैंग आउट करते हैं, हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, हम लोग वर्कआउट करते हैं, और उसमें भैया वर्कआउट वगैरह का प्रॉपर फॉर्म वगैरह समझाते हैं फॉर्म में क्यों है ऐसा, वो डेप्थ में जाते हैं हर चीज़ की, और वो सब बताएंगे अगर ऐसा गलत करोगे तो क्या होगा, सही करोगे तो कैसे करना है, वो सब बताते हैं। एंड जब भी हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो मेनली यूट्यूब एंड वीडियोस के ऊपर ही होता है। तो मैं इजीली ये कह सकता हूँ, मेरे को वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ भी जो एक टैलेंट है या फिर एक हॉबी है मेरी, ये मेरे को भैया ने ही ऐसे डिस्कवर करवाई। तो हम लोग मेनली जब भी हैंग आउट वगैरह करते हैं, हम ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं जो चैनल पे जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे थंबनेल्स वगैरह जनरेट करना, थंबनेल्स बनाना, वीडियो एडिटिंग, ये एआई आपको पहले पता था? एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं यूज करना आता था। और आई थिंक सो पिछले 2 सालों में तो काफी आपने उसके अंदर एक्सप्लोरेशन खुद ही कर लिया अपनी इस हाँ, एज में, और नॉट तब कर लिया था। हाँ, मतलब लास्ट 5 to 6 months उसमें मैंने भैया को देख देख के समझा कि एआई को कैसे यूज करते हैं। और मैंने खुद की थोड़ी बहुत कस्टम वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं, जो मतलब जो आइडियाज मेरे को लगते थे मैंने भैया को भी दिखाई हैं। एंड जनरेटिव एआई में बहुत ज़्यादा गया मैं, वीडियोस एंड बोलते हैं फोटोज, इन सब जनरेटिव एआई में बहुत ज़्यादा गया है लास्ट अपने आप के बारे में क्या जाना? मतलब हाँ, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने मतलब जान पाया मैं भैया के साथ। मैं मतलब चलो ठीक है, वो छोड़ो। मैं मतलब ये बताओ मुझे, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये बताओ मुझे कि और क्या स्किल सीखी? मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, इंट्यूशन वगैरह में भी हूँ, मैं साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली भी बंदे को समझता हूँ। आई गो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर shadows are, the fears are, the traumas are, and help them guide, because I have been through many things and I understand what it feels to be, at that point. And I basically, मेरा होता है कि the other person should not go through that, because it's tough. Actually, it's, nobody should go through that. जो मैं जिससे मैं गुजरा हूँ, I would definitely share my things, my story whenever needed. अगर आप लोग होगा तो I will do that, not an issue. But अब वो लोग उसमें से ना गुजरे तो उनके सॉल्यूशंस का, उनको ये क्वेश्चंस का उनको आंसर चाहिए ना, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन वो कहाँ ढूंढेंगे? उन लोगों से तो नहीं ढूंढेंगे जो एक मास्क पहन के घूम रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो भाई सीधा यहाँ पहुंच गए, हमें तो कोई दर्द ही नहीं हुआ, हमें तो कोई चोट ही नहीं लगी, राइट?
उनसे वहां रख पाएंगे जहां पे उन्हें वो स्पेस मिलेगा. सो आई थिंक वो स्पेस उसको लगा कि हाँ ठीक है, जैसे बता रहा है कि जज नहीं किया, तो वो आर वी टू जज यार, कौन है, हम नहीं है जज करने वाले, यू नो, एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर थिंग्स, एंड बस हमें आई थिंक सो कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू लिव आवर बेस्ट लाइफ. मैंने हमेशा यही बताया होगा कि आप कुछ भी करो, आजाद हो, सब कुछ करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ. आपके कर्म सही होने चाहिए. कर्म का सही होने का मतलब है कि सही गलत भी कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, आप जानते हो आपका सही और आपका गलत, किसका सही और किसका गलत कोई नहीं जानता है, ठीक है. बट लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये कहता है कि आप किसी को हानि मत पहुंचाओ अननेसेसरी, ठीक है. और अगर बी इंटेंशनल अबाउट योर एक्शंस, जो भी कर रहे हो, और पता होना चाहिए कि इसका कॉज एंड इफेक्ट है, जो करूंगा वो वापसी आएगा, ठीक है. और दूसरी और चीजें अध्यात्म की, कुछ स्पिरिचुअलिटी की कुछ बताई होंगी मैंने, जो मैं सीख पाया, जो मैं सीख रहा हूँ और जो मैं सीखूंगा, वो मैं वही चीजें इनको बताता हूँ, इसको या जो भी यू नो द पीपल हु आर देयर, एंड दे आर स्टक बेसिकली. जो उन प्रॉब्लम्स में ज्यादा स्टक है ये, जहाँ पे इनको अपनी इंडिविजुअलिटी की बात आती है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स की बात आती है, जहाँ पे एक यू नो फेसिंग द सोशल एनवायरनमेंट की बात आती है. क्योंकि उसी सोशल एनवायरनमेंट में जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है ना, ये बच्चे वहीं खड़े नहीं रह पा रहे, तो क्या फायदा उस चीज का. ये वहीं अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा उस चीज का. आज ये बोल पा रहा है, लेकिन आज से 3 साल पहले नहीं कर पाता है, और कोशिश करी थी शायद इस टाइम पे ऐसी नॉर्मल एक बनाने की वीडियो. आई वाज तो देयर बट वो नहीं कर पाया. देन आई थॉट कि नहीं करना चाहिए शायद, बिकॉज ही इज लाइक यू नो नहीं है प्रिपेयर्ड किसी भी चीज से, सो नहीं किया, यू नो, इट वाज लाइक दिस. सो उस आज भी कर रहा है अपनी, ठीक है. आई टोल्ड हिम कि लेट्स डू दिस बिकॉज आई नीड टू पुट अक्रॉस फ्यू थिंग्स, एंड बेटर है कि भाई सीधा रख दो चीज, जिसको देखना है समझना है समझ जाएगा, हम तो प्रूव करने बैठे नहीं है, व्हाटएवर. सो ये रीजन था, ठीक है. तो हम किस चीज पे काम कर रहे होते हैं ये भी आपने बता दिया कि वीडियोस के ऊपर और ये वो. नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मेटाफिजिक्स समझा आपको मैंने, क्वांटम आपने समझाया है, मतलब मेरे को नहीं, मतलब इतना we डेप्थ talk में about समझ these नहीं आता, things, बट हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बहुत समझाया मेरे को. स्पेस, spirituality, हाँ, space, spirituality, the kind of things which are highly intellectual and high require high awareness and high kind of you know meditative analysis, or even the in-depth questionnaire about questioning yourself. अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करना, डेप्थ में जाना, साइकोलॉजिकल फियर्स क्या है, तुम्हारे शैडोज क्या है, तुम्हारी पर्सनालिटी से कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ डिकोड कर देना, हर क्वेश्चन का इनके आंसर देना, नहीं पता तो उसको फाइंड आउट करना, बट नेवर टेलिंग देम यू आर नॉनसेंस. नो, कभी बोला मैंने? कभी नहीं बोला. मेरा सबसे ज्यादा डम से डम क्वेश्चन होगा, कोई डम से डम हरकत होगी, बट मेरे को कभी ऐसे नहीं बोला कि क्या फालतू चीज कर रहा है, बट मेरे को समझाते थे कि ये क्या है, मतलब इन डेप्थ बताते थे जो बताते थे, और सच बताते थे. क्योंकि क्यों करना है, कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो क्यूरियस माइंड है, आई बिलीव सो. एंड आइंस्टाइन था क्योंकि वो क्यूरियस था, यू नो, एंड एनी वन ऑफ देम कैन बी एनीथिंग ना. सो हु आर वी, एंड लाइक जस्ट लाइक टुडेज एजुकेशन सिस्टम टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि nonsense question, idiotic question. Well, क्यों nonsense and idiotic question? Fucking you are not able to answer that question. You think that it is nonsense, but it's not nonsense. And by doing that, you are undermining them, and you are putting a trauma inside the head of the child for his entire lifetime, that he will not be able to speak himself out freely. That's the thing that they are doing in the schools and education system. That's why I have a problem with them. ये reason होता है और कोई नहीं होता दूसरा, right? And खैर, anyway, that's a different topic. वो मेरी अपनी अलग चीजें हैं, but इसके बारे में तो मैं, हाँ, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे मेरी इमेज बनाएगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, हाँ जी, आपके इनके दादा है, दादी हैं, तो अगर बाहर आते हैं वो घूमने के लिए, यहाँ की सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल मीटिंग्स में भी उनके भी साथ वाले एज ग्रुप वाले होंगे, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. तो जो भी बुढ़े लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, इनके पास कोई दूसरा मेटाफिजिक्स तो करेंगे नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे नहीं, अपने घर की बात है तो करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कर ली. दे नीड समथिंग टू टॉक अबाउट, एंड वो आई अंडरस्टैंड दे आर फ्रॉम ओल्डर जनरेशंस, ठीक है. तो क्या करेंगे, दे नीड समवन सम गॉसिप. अब वो गॉसिप क्या है, अब बिकॉज दे हैव ग्रैंड किड्स, तो उन ग्रैंड किड्स को लेके आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज उनके इमीडिएट जो किड्स होंगे, मतलब बेटा बेटी या जो भी उनका बहू होगी, उनके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर इमीडिएट फैमिली यू नो डायनामिक्स, तो वो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन ऑन द रेपुटेशन और इमेज. बट बच्चों के बारे में करेंगे, ठीक है, चलता है बच्चों का. तो बच्चों के भी जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में करना, टू टॉक अबाउट देम, टू हैव अ गॉसिप अबाउट देम, टू यू नो एक्सट्रैक्ट थिंग्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस, एंड दैट्स हाउ द टाइम पास हैपेंस फॉर देम, यू नो. बट दैट is affecting someone, that is affecting the credibility, the image of someone, especially for that person who is living in the society, and ऊपर से वैसे ही वो अनकन्वेंशनल है, तो उसे तो पता नहीं फ्रेम कर दिया गया, और उसे पता भी नहीं कहाँ से आ रही है बात निकल के, and this coming from you know that kind of thing.
And now these people, what they are doing is ultimately एक इमेज बना दी उन्होंने. एंड हाँ ठीक है, ओके, सो हाउ डू यू थिंक सो कि ऐसे वो करते हैं और अपने फिर घर पे भी आके मैं मतलब हाउ डज दैट अफेक्ट तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है और मेरी इमेज को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, तो इन दोनों चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे होती हैं. सो मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ. होता क्या था, दादी एंड दादू जब भी अपने एज ग्रुप वालों के साथ मतलब अपने ग्रुप से मिलते थे, उन लोगों को तो कुछ मतलब वो सीधा यही बोलते थे आपके बारे में, सीधा कि ये नशेड़ी है एंड ये लड़कीबाज है, बहुत सारी इसकी लड़कियों के साथ घूमता है, एंड वो बोलते थे कि इसके 2-3 डाइवोर्स हो रखे हैं, ऐसी चीज़ें बोलते थे. अब उन लोगों के ऐसे दादी दादू के घर पे उनकी इज्जत पे बात आ जाती थी कि हमारा जो पोता है या फिर पोती है वो ऐसे इंसान के साथ क्यों घूम रहा है, उनको ऐसे सवाल आते थे. वो घर आकर मम्मी पापा को सीधा, नॉट मेरे को भी नहीं डायरेक्ट बोलते थे, मम्मी पापा को उन पे प्रेशर करते थे और उनको डांटते थे कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, कहीं भी जाके कुछ भी कर रहा है, पता नहीं कल तो कोई तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, पता नहीं बहुत सारी चीजें ऐसे कान भरते उन दोनों के. अब वो दोनों फेडअप होकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि नहीं मैंने मतलब वो एक दूसरे से बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, वो ये सब करके दोनों आते मेरे पास. अब जो चीज उन्होंने दादी दादू से सुनी और दादी दादू ने किसी और से सुनी और वो भी किसी और से सुनते आए हैं, उन उसकी वजह से वो मेरी लाइफ को वो मेरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि मैं किसके साथ उठ रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ, कहाँ तक मैं जी रहा हूँ, कहाँ तक नहीं जा रहा, कहाँ तक खाना खा रहा हूँ, वो सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं होऊंगा. और वो भी किसी ने खुद ही उसको लगा तो उसने बोल दिया. तो ये दिक्कत होती थी, इसकी वजह से घर पे लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि आई यूज टू आस्क कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरे में तो कोई गलती थी, मैं मतलब गलती नहीं, मतलब मेरे में कुछ ऐसे ट्रेड्स उन्हें दिखे नहीं. प्लस मैं भैया से मिलने के बाद और मैं और भी चीज़ों में गया, भक्ति वगैरह में गया, मैं भक्ति में गया, मेरे को अच्छा लगा. वो खुद ही करते जाते, उनका ढोंग था, ढोंग ही है उनका कि ऐसे भगवान का नाम ले लो और वो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी. उनकी फेक भक्ति जो भी थी, मैं उनको क्वेश्चन करने लग गया तो उनको प्रॉब्लम होती थी. अगर मैं उनके बेस को क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको प्रॉब्लम होती है. और जब बोलते थे कि उनके साथ मत घूम, मैं सीधा खड़ा हो जाता था, मेरे को नहीं घूमना है, मैं मतलब सॉरी मैं घूमूंगा, आपकी बात नहीं सुननी मेरे को. तो ऐसे कोई और बंदा हमारे घर के डायनामिक्स को कंट्रोल कर रहा था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बनता था घर में. और पहले तुमने मास्क करने की कोशिश भी करी, जैसे हाँ. अभी निकल गया क्योंकि तुम सोचते थे कि सिचुएशन को डाइवर्ट कर दूं. वो कर जाए, मतलब फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन था बेसिकली. divert डर कर लगता था दिया. कि यार क्यों किसी ये बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर दो ठीक है नहीं घूमूंगा, ऐसे करके सिचुएशन को हैंडल कर लिया. लेकिन हैंडल नहीं हो रही थी सिचुएशन, इससे एक नकली पर्सनालिटी आप जी रहे थे. डिड यू कम टू नो अबाउट इट ना, कैसा हो रहा है? यस यस यस. फिर देन ही मेड अ डिफरेंस, ही मेड कि नेम को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि अगर ऐसा कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही, बिकॉज ही शेयर्ड दिस थिंग. मैंने कहा तो भाई अपना सच रखो ना आप सामने, अगर आप गलत नहीं हो. देन ही स्टार्टेड कन्फ्रंटिंग, देन दे हैड अ प्रॉब्लम. फिर वो बोलने लग गए कि नहीं. देन दे क्वेश्चनड अबाउट हिज स्पिरिचुअलिटी, स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि वो तो बड़े बुजुर्ग है, उनके हिसाब से तो उम्र में ज्यादा है तो सही होने चाहिए. फिर उन्होंने इनके भक्ति के ज्ञान पूछा और जो भी पूछा, बट देन he was capable enough to ask the right questions and challenge them which they could not handle. और जब जवाब नहीं था उनके पास, so they reacted in this manner that whatever, जो भी इसने एक्सपीरियंस किया होगा. एंड देन उसके बाद भी चलो एक बार ये पूरी चीज भ्रम टूट गया, इल्यूजन टूट गया उनका. देन मेरे पापा को ये सब नहीं चाहिए था, उनको तो ऐसा था कि बीच वाला रास्ता निकालो कि ये वाली पार्टी भी खुश हो जाए, ये वाली भी पार्टी खुश हो जाए. तो वो करते क्या थे कि वो दादी दादू को बोलते थे कि मैं नहीं मिल रहा, एंड देन वी यूज्ड टू कम अप विद एक्स वाई जेड नेम, जैसे आरव हो गया कोई नाम है, मैं उसके कि माधव उसके साथ घूमने जा रहा है दिन में 8 घंटे, ऐसा करके कुछ भी बोलते थे, उनको पागल बनाते थे. जबकि उनको और ये जो नीचे हैं इनके एज के लोग उनको बताते थे सब, वो भी मम्मा पापा से कन्फ्रंट नहीं कर रहे, पापा मम्मी सच बोल नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है इससे पीस हैंडल हो रहा है. और इससे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को मतलब गुस्सा आता था, इरिटेट फील होता था कि भाई अगर मैं मिल रहा हूँ तो मिल रहा हूँ ना, मतलब है तो है, मैं मिल रहा हूँ तो उसको सीधा बोलो ना, क्यों अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हो हर जगह पर, हर जगह पर. अभी एक इंसिडेंट हुआ था हमारी सोसाइटी में, आई थिंक सो नवंबर दिसंबर की बात है, थोड़े बहुत ना ऐसे गाड़ियों की शीशे वगैरह टूटे, उसकी बात भी हमारे ऊपर डाल दी गई. और मैं भैया के साथ घूमता था, तो हुआ क्या, यहाँ का एक ऐसे ऑफिस का वो है मैनेजर जो होता है, वो हमारे घर चला गया, पापा को बोल रहा है कि तुम्हारे बेटे ने ये सब कुछ करा है. और पापा ने वहां पे करा क्या कि उन्होंने बात को डाइवर्ट करी कि नहीं मेरा बेटा घूमता ही नहीं है, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया. दादी दादू को भी और कहानियां बताई, कभी सच नहीं रखा. मेरे को बहुत ऐसे इरिटेटेड सा फील होता था. और मैंने फिर भैया को भी रिसेंट टाइम्स में 1-2 महीने पहले ये बताया
बताया था ना। हाँ, सो तो बेसिकली उनके उनके जो झूठ थे उनको संभाल, उसके झूठ की टावर को, इमारत को ये संभाल के चल रहा था, ठीक है। और माँ बाप के झगड़ों के बीच में भी तुमको जाके उनका सुलझाना पड़ता था कई बार। आई मीन इतना एग्जैक्टली, छोटा हो यस। के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि तुम क्या, मैंने बताया भी तुम्हें किसकी तरह एक पॉन पॉन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि जाके तू पापा को मना किया, जाके तू मम्मी को मना किया, बिकॉज दे आर नॉट स्पीकिंग विद ईच अदर, हाँ। एंड दादा दादी तो है नहीं। सो व्हाई द किड हैज टू टेक ऑल दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे भाई, आप लोगों ने अगर बच्चा पैदा करा है तो इट्स फकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि आप उसको वो एनवायरनमेंट दो। कोई भी हो, चाहे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सबकी भी बात कर रहा हूँ जिनके घर में सारी चीजें होती हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स अबाउट द एंटायर सोसाइटी में, तो मैं सबको खींचता हूँ, राइट। सो आप भी देखिए कि अगर आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज द फकिंग किड इज गोइंग थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा। और आप अपने घर में नहीं देखोगे, आप देखोगे दूसरे के घर में। बाय शेयरिंग हिज स्टोरी ही फकिंग हैज द गट्स टू स्टैंड इन हिज ओन ट्रूथ। हिम्मत है। यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो कि क्या आप कर रहे हैं, आपके घर में हो रहा है ऐसा, क्योंकि बच्चा बताएगा नहीं, देन यू लेटर थिंक यार बच्चा तो ऐसा ही रिएक्ट कर गया, कर नहीं गया, बिकॉज वो प्रेशर बिल्डअप कर दिया और एक दिन बस वो फट गया, और आप सोच रहे हो अरे कैसा कर दिया इसने, ये कर दिया वो कर दिया। वो कर नहीं दिया, उसे करवाया गया, बिकॉज यू नेवर एक्सेप्टेड, यू नेवर लिसनड, यू वर जस्ट इम्पोजिंग द थिंग्स। और एक चेहरा अपने दिमाग में रखा ये ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, देखो तो कभी। वो बता रहा था स्टार्टिंग से ही, आप सुना ही नहीं आपने। तो दैट्स द थिंग दैट हैपेंस। और एक चीज और, तुमको क्यों लगता है कि अपार्टमेंट वाले के लिए या फैमिली के लिए टारगेट करना एक अनकन्वेंशनल पर्सन जैसा मैं हूँ, जैसे जाएगी, तो वो इजी है रादर देन सॉरी रादर देन जो घर के अंदर हो रहा है वो इश्यूज देखने से ज्यादा उस पर नहीं काम करेंगे, और एक अनकन्वेंशनल बंदे जी रहा तो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ के उसकी बातें शुरू कर दो। और वो क्यों लगता है कि क्यों आसान है ये चीज? सी, दादा दादू के पर्सपेक्टिव से, मम्मी पापा के पर्सपेक्टिव से, जो घर में चीज़ें हो रही हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज इट इज़। उनको लग रहा है कि जो घर में है या फिर जो भी है लड़ाई हो रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लव। उनको लग रहा है कि ये होता है और यही होते आया है, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई कितनी ही एक्सट्रीम हो, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। और जब कोई ऐसा उनको दिखे जो इन सब बाउंड्रीज को तोड़ दे, उनके भ्रम को तोड़ दे, मतलब उसने ऐसा कुछ कर दिया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अपने लिए स्टैंड अप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे घर में तो ऐसा ही है ना कि बच्चे को कुछ बोलने नहीं देते, बट आपको ऐसा देखा जो अपनी बात रख रहा है और बिल्कुल करेजियस होके रख रहा है, किसी का बिना डर डर हुए रख रहा है, तो उनकी इनसिक्योरिटीज बाहर आती थी, समझ रहे हो? वो समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। वो जब, और प्लस जब मैं आपसे मिला जुला, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जब मैंने घर पे बात रखने और कोशिश करी, तो उनको लगा कि आप मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे हो। वो अपने घर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज इट इज़, उनको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो दिखावा करते हैं कि उनका घर से पता बढ़िया है। उनको दिखावा करना है कि जो उनका प्यार है या फिर उनका कुछ भी है, कोई रिलेशन है, वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रैक्स होते हैं और वो क्रैक्स पूरी दुनिया को दिखते हैं, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बोल रहा है। यू नो व्हाट हैपेंस इन द प्राइवेट, जो दीवारों के पीछे हो रहा है ना, वो बाहर भी दिखता है। सो इट्स नॉट कि आप को लगता है आप छुपा रहे हो, वो साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा होता है। बट वही है कि एक आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, उसने भी मास्क पहना है, वो भी कह रहा है भाई मैं तो बढ़िया हूँ, वो भी कह रहा है मैं बढ़िया हूँ, यही बोलते हो ना। दुख तो नहीं सीधा बताते, कोई पूछता और भाई क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया, बस ये बोल के निकल जाते हो। तो एक्चुअली सभी झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि एक्चुअली चल भी क्या रहा है उसकी लाइफ में, दूसरा में बताने में इंटरेस्टेड है नहीं। दोनों ड्रामा कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, दैट इज व्हाई द रिलेशनशिप्स आर लाइक दिस। नकली है, फाउंडेशन नकली है तो खोखले हैं, रियल कहाँ है? ही probably found that real place, उसको लगा कि रियल है रिलेशन, मैं भैया के साथ रहूंगा, and that is the reason why speaking about this। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेन वॉश किया अपनी फैमिली के लिए, his decision is that, वो चूज कर रहा है, वो अपने माँ बाप को गलत नहीं, ये नहीं कह रहा कि मेरे माँ बाप बुरे हैं, नो, बट जो भी उनके एक्शंस हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ही इज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस दोज थिंग्स। ही स्टिल रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, और मैं चाहूंगा भी करे, और मैं चाहूंगा कि इसने जो भी फेस भी करा है, he is just sharing the story for the other people to understand, and शायद किसी को लेसन मिल जाए, but never to downplay the parents। तो वो मैसेज बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक सो। मैंने कभी नहीं कहा ना कि भाई ठीक है तुम अपने पेरेंट्स को भाई छोड़ के आ जा, एक नहीं, कभी नहीं कहा मैंने। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स की, बट जो चीज़ें मेरे को इफेक्ट कर रहे हैं उनके एक्शन की वजह से, मैं बस उसको कन्वे करना चाह रहा हूँ, और मैं बस चाहता हूँ कि वो अंडरस्टैंड कर पाए मेरी बात। जब तुमने कन्वे करने की कोशिश करी लाइक अभी कुछ टाइम पहले, तो क्या हुआ? ओके, सो यही थोड़ा बहुत 2-3 दिन पहले की बात है। मैं गया था पापा के पास इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे को फील हुआ आपके इन एक्शन की वजह से। मम्मा के पास गया, सो
पापा जो थे वो बिल्कुल डिनायल में थे। उनको ऐसा था कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई मेरे साइकिल, लिए गलत करा था ना, बोलो हाँ, बोलो। तो उन्होंने, उन्होंने, उनसे कोई गलती हुई थी जो उनको लगा कि मेरे अगेंस्ट उन्होंने कुछ बोल दिया कि नहीं बोलना चाहिए था। हाँ मतलब उन्होंने करा क्या था एग्जैक्टली कि जो सोसाइटी वाले ऑलरेडी लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे थे, उनकी हाँ में हाँ और मिलाई, जबकि वो मेरे सामने बहुत अच्छे बनते थे कि मेरे को तो बड़े अच्छे लगते थे भैया ये वो। एंड प्लस उन्होंने आपको ऐसा देखा था, उन्होंने ये डार्क साइड जो भी सोसाइटी वाले बोलते हैं वो कभी देखी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई अपनी ऐसे क्या बोलते हैं, इज्जत, पीपल प्लीजिंग, पीपल प्लीजिंग, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए। बचाने, इज्जत नहीं, उनकी इज्जत पे कहाँ बात है बेसिकली। क्यों अगर हाँ बोल देते कि मेरा मतलब मेरा मेरा बेटा बेटा उसके साथ घूमता घूमता है, तो हाँ अच्छा, तो तो वो उनकी, नकली इज्जत बचाने के लिए, ओके। हाँ तो उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा जाता है, या फिर उनको बोला जाता तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही, ये वो बोला जाता। तो उनके फादरहुड पे क्वेश्चन करा जाता बेसिकली। एग्जैक्टली, तो उनके पूरे घर पे क्वेश्चन किया जाता ना। हाँ हाँ, पर एक गलत बात है ना, उनकी इज्जत उन्होंने इस चीज से लगा रखी कि सोसाइटी क्या कहती है, बट हालांकि होना क्या चाहिए, उनकी सेल्फ एस्टीम क्योंकि लो है। अगर सेल्फ एस्टीम हाई होगी उनकी, तो वो इज्जत कभी भी सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी, वो खुद उनके एक्शंस और उनकी वैल्यूज जो है उनके मन के अंदर जो है, वो कैसे लाइफ जीते हैं, इंटीग्रिटी जो है, ये सब वैल्यूज जो उनकी है वो डिसाइड करती है, और वो हाई रहती है कि नहीं, मेरे को पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आई हैव अ फकिंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद माय सन, जो अपनी बात मुझसे एज अ फ्रीली फ्रेंड की तरह करता है। शायद मेरी जरूरत भी नहीं होती, तब मैं होता भी नहीं यहाँ पिक्चर में अगर ऐसा होता तो, बट इट्स नॉट देयर, सो दे हैड, द ट्रूथ हैड टू कम आउट लाइक दिस। तो मेरे बारे में बोला, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ। ओके सो 2-3 हफ्ते पहले मैंने ये वाली चीज ऑलरेडी उन्हें एक बार बोली थी। सो ही सेड आई एम रियली सॉरी एंड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, एंड सेड कि मेरे को सही में बुरा, आई फील बैड कि मैंने तुम्हारे भैया के साथ ऐसा करा है, एंड आई वुड लाइक कि वो मेरे को फॉरगिव कर दे, एंड आई वुड मतलब अपोलॉजी वगैरह का, तो उन्होंने बोला था कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू हिम। उन्होंने ये शब्द बोले थे मेरी मम्मा के सामने। सो नेक्स्ट, अब 2-3 दिन पहले जब मैं ये चीजें उनके पास सामने रखे गया कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोला था, तो आपने क्या एक्शन करा, मैंने और भी थोड़े बहुत सवाल थे, तो मैंने पूछा कि क्या करा आपने क्यों फर्दर। हुआ ऐसा भी, क्योंकि बिकॉज आई गॉट टू नो, अपनी मेरी इंट्यूशंस है, मेरी अपने, यू नो, आई एम लाइक दिस, सो आई गॉट द इंट्यूशंस, आई गॉट अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं, यू नो, समथिंग हैज बीन डन अबाउट मी। सो आई डायरेक्टली आई आस्क्ड, एंड ही नोज माय इंट्यूशन पावर्स, ही नोज कि मैं कैसे जो है तो रख देता हूँ, और थिंग्स आर लाइक दिस। तो मैंने पूछा उसको कन्फर्म, तो उसको हेजिटेशन नहीं, ऑफ कोर्स बिकॉज पेरेंट्स है, घर में ऐसा हुआ है, बट ही डिड नॉट नो कितना पीछे उसकी वजह से इतना ब्लंडर हो गया। सो आई वाज वेरी इमोशनल अबाउट दैट थिंग। मैंने उसको बोला, यार तेरे को पता है, बिकॉज यू नो, तू, मैं तेरे तक क्लोज हूँ, तेरी घर वाले ने ऐसा ऐसा अगर बोला है, तो मेरी इमेज पे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ गया, और खराब गई, क्वेश्चन क्या उठ गया, खराब की गई। एंड इट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो, कि पहले ही बचपन से ही ऐसे हुआ मेरे साथ भी। सो आई वाज द फकिंग स्केपगोट। मैंने प्रूव नहीं करा अपने आप को, मैं प्रूव करने नहीं गया, बट ये करना पड़ रहा है मुझे। आई हैव टू फकिंग टेल इट, इट्स नॉट फॉर प्रूविंग, इसके ट्रूथ के लिए। सो उसको उस चीज का बहुत बुरा लग गया कि यार मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कैसे कर दिया, वो दैट्स व्हाई ही वेंट बैक एंड कन्फ्रंटेड, पूछा कि पहले तो आपने ऐसे बोला, फिर आपने ऐसा क्यों किया, देन व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड ही से। सो होता क्या था, मेरे सामने आके बोलते थे कि मेरे को तेरे भैया बहुत अच्छे लगते हैं, उनके विचार वगैरह बड़े अच्छे हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। बट जब मैं नहीं होता था, मम्मी को या फिर मम्मा नानी को, पापा मम्मी, इनके बीच में वो ऐसे बोलते थे ये तो कुछ काम नहीं करता है, लड़की बाज है, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और मेरे को ये अभी अभी रिसेंटली पता चला। सो देन मैंने जब कन्फ्रंट करा वापस से ये वाली ये सारी चीज़ें उनसे पूछी, ही वॉज इन डिनायल, ही मना कर दिया कि उन्होंने मेरे से बात करी है, मना कर दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सेप्ट करा है अपनी मिस्टेक, और मना कर दिया कि उन्होंने अपॉलॉजी नहीं देनी, मतलब ये सब चीज़ें मना करी। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ़ी लेना ना देना वो उनकी बात है। वो मैंने बोला कि क्यों नहीं करना आपको, ऐसे माफ़ी वगैरह क्यों नहीं मांगनी, मैंने पूछा, बोलते मैं छोटा हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, एक चीज़ ये होती है, मैंने तब भी पूछा आपको अपनी मिस्टेक समझ आई, बोलते नहीं मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। मेरे को बहुत ऐसे बुरा लगा, मैं गुस्सा आया, तो मैं मम्मी से मम्मी भी थी, मैंने मम्मी से पूछवाया, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मा ऐसा हुआ था ना, लाइक ये शब्द पापा ने खुद बोले थे ना। मम्मी बोलती हाँ, बट पापा बोलते नहीं मैंने नहीं बोले थे, तो वो बिल्कुल डिनायल में थे। मतलब वो ऐसा था कि वो कॉन्वर्जेशन हुई नहीं, ऐसे हो गए थे बिल्कुल ही। और समझ जब सकता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभार होता है इंसान का। देखो मैंने कभी उनको बोला कि नहीं ऐसा करवाओ, ऐसा करो, उनको बोलो माफी नहीं, मेरे को मेरे, ठीक है, इट्स ओके, मेरे को था इमोशन था, मैंने बोल दिया, मेरे को प्रूफ करना नहीं है। बट नीदर आई वांट समवन टू, यू नो, कम मेरे से माफी हो गई, क्यों करना यार, बट आई एम नो वन टू गिव समवन बात फॉर। ये है, पापा ने खुद बोला था कि उनको माफी मैं मान गया, मुझे पता है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हाँ, उस वक्त मुझे गुस्सा देखो आया देख था। रहे हो कि इसको इस चीज का बुरा लगा हुआ है कि भाई मेरे फादर ऐसे मेरे सामने मुझसे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, मेरे को गलत साबित कर रहे थे, दैट्स द थिंग दैट ही इज फीलिंग बैड अबाउट। जबकि मेरे को इतना वो ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो लिया नहीं, फॉरगिव छोड़ दिया, अपने मन में ही छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज मैं उस चीज से आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ना है, बट इसके वो दुख, वो चीज लगी हुई है, तो कैसे आगे बढ़ेगा टिल द टाइम, यू नो, ही कन्फ्रंट्स दैट।
ट्रूथ। तो ये चीज है, आई अंडरस्टैंड, दैट्स ओके, बट मेरे मन में कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा इसमें भी, ठीक है, एक नैरेटिव भी पुश किया जाता है अपार्टमेंट में कि मैं तुम्हें भाई साथ में लेके घुमाता हूँ, बुलाता हूँ, और तुम्हारे मन में, दिमाग में मैं गलत चीजें भरता हूँ, तो तुमको बिकॉज तुम 15 साल को, तुम्हें ब्रेन वॉश करना इजीली है, छोटे हो तो तुम सुनते हो भी जाते हो, डराता हूँ, जो भी बोलते होंगे। तो तुम ये बताओ कि मुझे, तुम यहाँ पे बैठे हो जो वो अपनी मर्जी से बैठे हो, फ्री विल से बैठे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि ये, और लगता है तुम्हें कि ये जरूरी है, बोलना चाहिए जो भी तुम बोल रहे हो अभी? ओके सो हाँ, मैं जो यहाँ बैठा हूँ अपनी फ्री विल से बैठा हूँ। भैया से जब मेरी बात हुई थी इस सब के बारे में, भैया ने बोला था इट इज़ अप टू यू। एंड जो जो इन्फो आए, मेरे को लग रहा है, मतलब ये जो मेरे साथ हुआ है, मेरे को, मेरा नहीं चाहिए किसी और के साथ हो, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मतलब किसी और के साथ क्यों होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। सो मैं अपनी फ्री विल के साथ बैठा हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन ऐसे ज़्यादा प्राइवेट थी मैंने वो भी शेयर करना नहीं करी। सो मैं अपनी बिल्कुल मर्जी से बैठा हूँ, मेरे को भैया ने कुछ ज़बरदस्ती नहीं करी थी। ये क्वेश्चंस भी मैंने तुमको बताए नहीं है जो हाँ, ये अभी अभी पूछने, इसलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मैं ऐसा हो गया कि अचानक से कैसे आंसर सब करूं। सब तुरंत बिल्कुल है, हाँ, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट प्रिपेयर किया कि ठीक है, वी विल बी लाइक डूइंग लाइक दिस, कहता अच्छा एकदम से ऐसे वैसे, थोड़ा सा इसको सरप्राइज हुआ, एंड हाँ, आई एम सरप्राइज्ड कि द काइंड ऑफ ग्राउंडिंग ही हैज, द काइंड ऑफ गट्स, फकिंग गट्स ही हैज इन दिस काइंड ऑफ एज, व्हिच इज वेरी गुड। ये सीखने वाली चीज है इससे, द इमोशनल क्लैरिटी ही हैज, वेरी गुड, and he's what fucking thing that he is going through अकेले, because he is the only child in the family, तो किससे गुजर रहा है वो, एंड वो जो अभी करेज दिखा रहा है, ठीक है, और ये मेरी जिम्मेदारी ऑफ कोर्स कि टू प्रोटेक्ट हिज वेल बीइंग इन टर्म्स ऑफ हिज ओवरऑल, जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज का, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट, एंड आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू ब्रिंग आउट द मैसेज, to bring the right thing which has to be there in the society. The message should be there very clear to the parents, to the society, and he should not be targeted for that किसी भी way में, and he should not be impacted in a wrong manner. So that kind of protection he believes, वो भरोसा है इसको, तभी बोल पा रहा है ना, अगर डर होता तो नहीं बोल पाता शायद, ठीक है। एंड मैं लड़कियों को लेके बहुत बोलते हैं, लड़कीबाजी लड़कीबाजी, मैं क्या सोचता हूँ भाई लड़कियों के बारे में, क्या सोचता हूँ मैं, और तुम्हें मैंने बहुत कुछ बताया, ठीक है, मेरी लाइफ बड़ी वैसी रही है, अगेन अनकन्वेंशनल है, स्टेटस को ये वो, आई लव समवन, एंड मेरे पीछे मैरिज हुई है, डिवोर्स भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो मेरी पर्सनल कहानी, अगेन उसके बाद में आएंगे अगर आना होगा तो। द थिंग इज, आई वांट टू आस्क कि लड़कियों को लेके जो मैं सोचता हूँ, मेरी सोच है, आज 4 साल बहुत होते हैं, तुमने क्या समझा है मेरे को लेके लड़कियों के बारे में? ओके सो 4 साल पहले तो इतना, मतलब ओके सो हुआ क्या था, मेरे दोस्त, एंड 4 साल पहले मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा था, मेरा घुलना मिलना था। सो तब उन लोगों ने जितना, मतलब मैं, ओके सो वो लोग करते क्या थे, लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्ट बताते थे। मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो उसको, लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे, और ऐसे ऐसे जोक्स, मिसोजिनिस्ट जोक्स जो होते हैं वो सब बोलते थे। और मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? तो मैं शब्द ही पहली बार सुना, मतलब मैंने कहीं ना कहीं देखा है, बट तुम्हारी एज में मिसोजिनिस्ट मतलब बहुत बड़ी चीज हो गया थी। ओके सो ये भी क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा इंटरनेट पर्सनल, अच्छा, वो मतलब तुमने बोला है, मैंने पकड़ ली। हाँ, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी या फिर वही गुरु बनता है, एंड्रू टेट होगा, आपने देखा होगा, वो चश्मा वगैरह पहनता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो भी वही ऐसी थिंकिंग प्रमोट करता है कि लड़कियों को ऐसे घर में रहना चाहिए, और ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है, समझ रहे हो? अच्छा, एक मर्द को कमाना चाहिए, और वो लड़की को उसको ऐसा क्या बोलते हैं, बात माननी चाहिए, और जो बोले एक आदमी वही लड़की को करना चाहिए। तो मैं, अच्छा, मैन को ऐसे सुपीरियर दिखा के, एंड वुमेन हाँ, जो है वो एक इंफीरियर उस पे रहना चाहिए, हाँ जी, डोमिनेशन एंड उसमें, ओके, सो ठीक है। ऐसे जोक्स वगैरह थे, और यही माना जाता था, यही ऐसे फ्रेंड्स वगैरह तो यही करते थे। 2-3 साल की बात, 3 साल पहले की बात है, तो यही चलता रहता था, एज अ ऑब्जेक्ट ही था, और एक दूसरे की मदर्स को लेकर बहुत ज़्यादा वल्गर जोक्स, और मतलब हाँ सॉरी, हाँ, एक दूसरे की मदर्स वगैरह को लेकर, एक दूसरे को सिस्टर्स को लेकर बहुत ज़्यादा वल्गर जोक्स थे। जोक्स भी क्या, मतलब वो गुस्से में ही बोलते थे, और ऐसे बोलते थे कि मीन करते हैं। जोक्स भी नहीं कहूँगा मैं, क्या बोलते थे? एक मतलब जोक नहीं सुना, जोक मत सुनाओ, सीधा बोल क्या बोलते हैं, जो जैसे बोलते हैं वैसे बोल दो, आप बोल मैं दो, मानता नहीं वो है ना सच, जो सच है वो बोल दो सेंटेंस, पूरी दुनिया वैसे भी सुनती रहती है आजकल, लाफ्टर चैलेंज पता नहीं क्या क्या बकचोदी मारते हैं, मेरे से भी बोल रहे थे कि ऐसा बोला, बिरयानी इतना रेट किया तो मैं लेके जाऊंगा, फकिंग नॉनसेंस, मैं इस पे क्या कमेंट दूं अपना? चलो खैर, एनीवे, बिकॉज मेरे को पता है ना कमेंट क्या है, कोई बोलेगा गलत है, कोई बोलेगा सही है, उसके बाद तो कुछ होना नहीं है, यही होना है इसके ऊपर, जो रियल कॉज है उस पर तो कोई काम कर नहीं पाएगा, बियॉन्ड उसके लिए कुछ और सॉल्यूशंस चाहिए, जजमेंट ही कर सकते हैं सोसाइटी है, तो मैं उसके बियॉन्ड हूँ।
एनीवे तुम बताओ। हाँ, सो मतलब ऐसी चीजें बोलते हैं कि तेरी माँ को ऐसे सड़क पे चोद दूंगा और ऐसे रंडी वगैरह, तेरी बहन ऐसी है वैसी है, ऐसी चीजें ज्यादा बोलते थे और यही मानते थे, यही यही चलता रहता था। सो अगर ऐसे 2 घंटे हम लोग बैठे हैं दोस्त, तो उसमें ऐसे 1 hour 30 minutes यही चल रहा है, एक दूसरे को यही बहन और माँ की गाली ही दे रहे होते थे। और मैंने क्या कभी समझाया तुमको ये सब चीजें? नहीं, प्लस मेरे को भैया ने समझाया कि ऐसा वुमेन को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वुमेन एक मतलब माँ होती है, ये मेरे को समझाया। लाइफ दे रही हैं किसी को, वो लाइफ देने के केपेबल हैं, वो सारी चीजें मेरे को भैया ने समझाई। और गाली वगैरह शुरू में ही समझा देता मेरे को कि ये क्या बोलते हैं, गाली वगैरह से दूर रहे, और ऐसी गाली तो खासकर नहीं देनी। अब वो थोड़ी बहुत ऐसी गालियां हैं जो टंग पे रह गई हैं, बस वो रह गई, बट शुरू से मेरे को समझाया कि ऐसा वुमेन को रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, और जो फीलिंग्स होती हैं लस्ट और डिजायर की, उसके साथ कैसे मतलब डील करना है, समझाया। ऐसा नहीं बोला कि लस्ट बंद कर दे, या फिर उन्होंने सीधा समझाया कि लस्ट एक एडोलेसेंट जो होता है उसके उम्र में होता है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह की वजह से। मास्टरबेशन, हाँ, मास्टरबेशन, लस्ट वगैरह। नहीं, लस्ट तो इमोशन हो गया ना। ओके, सॉरी। तो आपको जो अराउजल होता था, मन में इच्छा आती थी, क्योंकि ऐसा, क्योंकि मुझसे तो बाद में मिला, अगेन ये सब चीजें तो तुम्हें पहले समझ में आ गई भैया, कौन होता है हाँ, वेबसाइट, हाँ, ये तो इससे भी पहले 4 साल पहले, मतलब 10-11 साल की उम्र होगी तब। तो तब से अगर इसको ये मालूम है, हमें नहीं पता था, बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस कम्युनिकेशन, आज के टाइम में सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड है। सो तो उनको पता है 10 साल की उम्र में, 8 साल 9 साल की उम्र में कौन वेबसाइट है, कौन होता है, जबकि ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं हुए हैं, हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब वो चीज देख रहे हैं। तो उसका जब सही टाइम आया, 2-3 साल बाद अराउजल हुआ, वो सारी चीजें शुरू हुई, हार्मोनल चेंजेस, तो जब उसने फेस किया होगा, तो उसने उसको, अब मेरे सामने एक क्वेश्चन लेके आया, तो मैं क्या उसको कैसे रखेंगे। अब मेरे सामने लेके भी नहीं आया, इनफैक्ट मुझे पता लगा, तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, अच्छा ठीक है, देन ही वाज, कैसे तैसे उसने अपनी बात रखी, बट आई अंडरस्टूड दैट। तो मैंने उस चीज को कैसे किया, डिड आई से दैट गलत है या पूरा ही गलत है, क्या किया मैंने? मतलब सप्रेशन। आपने ये नहीं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गलत सही कुछ नहीं बोला था उसके बारे में, आपने मेरे को बट समझाया था कि ये मेरे एज में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और इसको अभी मतलब आना जो है वो नेचुरल ही है, तो इसको पहले एक्सेप्ट कर लो और एम्ब्रेस कर ले। ऐसा भी नहीं था आपने बोला कि बंद ही हो जा या फिर ऐसे। मैं ना शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा वो था, मतलब शाय सा था, मैं बोल नहीं पा रहा था आपके सामने, बट उसके बाद आपने इन डेप्थ मुझे जब लेके गए तो मुझे समझ आया कि ये क्यों होता है और ये क्या है एग्जैक्टली। तो यही नहीं था कि आपने सीधा गलत या सही कर दिया किसी को, यहाँ पे आपने ये ऐसे जज की तरह ये नहीं करा था, बट आपने समझाया था पूरी इसके प्रोसेस। बायोलॉजिकल रीजन, हाउ द बॉडी इवॉल्व्स, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो, क्यों फीलिंग्स आ रही है, क्या इमोशन है उसके पीछे, उस इमोशन के साथ आप कैसे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि वो गिल्ट में नहीं जाना आपने, कि आपने ऐसा कर दिया तो गिल्ट हो रहा है आपको, किसी ने गिल्ट महसूस आ रहा है तो गंदा काम कर दिया, गलत काम कर दिया। नो, इट्स अ फकिंग थिंग दैट हैपेंस इन द यूनिवर्स, प्लांट्स आल्सो मास्टरबेट, द एनिमल्स डू दैट। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी वियर्ड। तो उसके अराउंड एक सिर्फ टैबू बना नहीं देना है बच्चे के दिमाग के अंदर। तो मैंने उसको वही बताया कि दीज आर द नॉर्मल थिंग्स एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड एवरीवन गोस थ्रू दैट, एक्सेप्ट इट, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग एंड यू डिसाइड कि आपको कितना नॉनसेंस में जाना है। कई बार नॉनसेंस पहुंचती है चीजें, बिकॉज एवरीथिंग इज देन इल्यूजन। आप वहां बढ़ के उस इल्यूजन को कहां तक लेके जाते हो, क्या इल्यूजन आपको सेटिस्फाई दे रहा है, डिजायर आप कहां जा रहा है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द ब्रेन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप सप्रेस कर दोगे, पूरी तरह बंद कर दोगे, गलत है गलत है गलत है करके, तो बच्चा वो सप्रेस इमोशन बाद में निकलेगा बाहर। रेप्स में वही चीज जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट टर्न इनटू रेप, बिकॉज वो बहुत टाइम तक सप्रेस इमोशन हो जाता है। तो दे हैव अ क्यूरियोसिटी अबाउट इट, दे हैव अ सप्रेस्ड इमोशन, तो वो कंट्रोल नहीं होता, ऐसे हो जाता है फिर, देन दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। सो ये चीज थी, राइट। तो औरत को लेके मैं बहुत क्लियर रहा हूं हमेशा से, ठीक है। औरत माँ है, माँ का दर्जा दिया है। वो बात अलग है कि माँ वाले तत्व में आना जरूरी है, देवी माँ जो होंगी आजकल, जो लड़कियां हैं जो है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाए या उनको गलत नजर से देखा जाए, ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए। ठीक है, आई मीन दे हैव देयर ओन रिस्पेक्ट एंड उसको मेंटेन करना चाहिए सबको, ठीक है। एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द मैन, इक्वली है, कुछ गलत नहीं है, दोनों एक ही है, राइट। एंड टुगेदर, एंड एक आदमी के अंदर भी औरत होती है, बाय द वे, अगर आपको को पता नहीं होगा तो। एक आदमी के अंदर औरत होती है, आदमी और औरत के अंदर भी आदमी होता है। वो अगेन उसके अंदर टेक्नोलॉजी में, सॉरी टेक्नोलॉजिया नहीं, उसके डेप्थ में मैं बाद में चले जाऊंगा, साइंटिफिक उस एस्पेक्ट पे और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी बात कर सकता हूं मैं, लेकिन अगेन बाद में। पॉइंट हियर इज कि लास्ट चीज मैं पूछूंगा आपसे, अगर ये सोसाइटी की जो हाउसिंग कमेटी है, आई मीन जो सोसाइटी की कमेटी है, उसके मेंबर्स की, नेबर्स और आपके फादर,
अगर ये वीडियो देख रहे हैं आज या आपकी फैमिली वाले, तो व्हाट इज द डायरेक्ट मैसेज टू देम रिगार्डिंग माय रोल इन योर लाइफ एंड योर ओन इंडिपेंडेंट चॉइसेस? ओके दो क्वेश्चन। ओके सर, सबसे वो पहले मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी वालों को, अपनी फैमिली वालों को? लोगों को नहीं दे रहे, सोसाइटी को, अपनी फैमिली वालों को और जो भी आपके नेबर्स हैं उनको, रिगार्डिंग माय रोल इनटू योर लाइफ एंड योर इंडिपेंडेंट चॉइसेस। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका रोल हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मैं एक ऐसे पोजीशन में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा आपका रोल, बट आप एक ऐसे बड़े भाई हो, साथ साथ एक गुरु हो, जो हर छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़ा क्वेश्चन, हर चीज़ को आंसर करेगा, उसको भी दोनों साइड बताएगा एक आंसर की, अपना ओपिनियन को साइड रखे, मतलब पूरा सच बताएगा और गाइड कर सकता है दूसरों को, क्योंकि उसने वो सब कुछ फेस करा है और मेरे को भी करा है इन सब चीज़ों में गाइड, ये सब मेरे को समझाया है। तो मेरी लाइफ में जो आपका रोल रहा है वो एक ऐसा बड़ा भाई, एक अच्छा एक दोस्त जो अंडरस्टैंडिंग है और एक गुरु की तरह रहा है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मेरी इंडिपेंडेंट चॉइसेस टुवर्ड्स ये द सोसाइटी इज कि अगर कोई मतलब मेरे जैसे मेरी उम्र का है और अगर कोई सुन रहा है, पेरेंट्स सुन रहा है, तो कोई ना अपना मोटिव मत फोर्स करो, क्या बोलते हैं, अपने बेटे पर या फिर कोई भी अपने मोटिव किसी और के ऊपर फोर्स मत करो। कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है वो किसी और पे फोर्स मत करो, और उसको अपनी चॉइसेस खुद बनाने दो, उसको वॉन्डर करने दो, उसे देखने दो क्या करना है उसे। ऐसे नहीं कि उसको जो तुम्हें लग रहा करना है वो उसके ऊपर कर दिया, मतलब अपनी चॉइस को उसके ऊपर ऐसे बोल रहे हो करने के लिए, फोर्स कर रहे हो। उसको वॉन्डर करने दो, उसको खुद की चॉइसेस बनाने दो, उसको अगर उसने कोई गलती करी है उसको उसके लिए अकाउंटेबल होने दो, क्योंकि तभी वो मेरे हिसाब से सीख पाएगा। अगर मैं अपनी गलतियों के लिए अभी अकाउंटेबल नहीं होता तो मैं शायद से यहाँ पे ना बैठा होता, और अगर मेरी कोई गलतियाँ मैं छोड़ देता या फिर कोई और आके मुझे बचा लेता, कुछ भी ऐसा होता, तो मैं यहाँ ना बैठा होता। अगर मैं कोई अपने गलतियों को अकाउंटेबल रह सकता है तो वो अपनी लाइफ के चॉइसेस खुद बना सकता है, कर सकता है। तुम उसे गाइड कर सकते हो कि ये मत करो, बट तुम उसे फोर्स मत करो, उसे एक बार देखने तो दो उसे, मतलब लेट हिम बी या लेट हर बी, मतलब जो है उसको करने दो, उसको जो चाहिए एग्जैक्टली अगर जैसा आप है सच वैसा में, रहेगा। हाँ, अब वो सीख रहा है ना, वो सीख रहा है, और अगर आप सच में उसके इतने अच्छे केयर टेकर हो या इतने अच्छे उसके लिए एज रोल मॉडल हो, तो उसकी परेशानी जब वो गिर रहा है जहां पे, वहां उसके लिए खड़े होने का उसका एश्योरेंस दे दो कि हाँ मैं खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, उतना ही चाहिए होता है। ही नीड्स दैट काइंड ऑफ दैट सपोर्ट, जिसको हमेशा हर जगह से धोखा मिला है, टूटा है उसका ट्रस्ट, तो उतना ही चाहिए कि ही इज देयर, कर लेगा वो अपने आप, बट उतना ही चाहिए। एंड ही हैज टू डू इट हिमसेल्फ, ये भी आपको एहसास रखना, आपने उसकी जर्नी नहीं करनी है, गाइड तो करना ही नहीं, खुद ही नहीं चलने लग जाना है उसको कंधे पे लेके, राइट? उसकी ड्यूटी है, उसका कर्म है, उसका धर्म है, उसका रोल है, उसका पाथ है, उसको सीखना है। आप गाइड करो, चलने उसको दो, एंड बी देयर एज अ फ्रेंड। और मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझता। ही उसका बड़पन है जो भी है, ही उसका सोचता है, गुरु सोचता है, वो सोचता है, लेकिन आई एम नॉट इवन अटैच्ड टू दैट गुरु थिंग, स्टूडेंट थिंग, नहीं, आई एम जस्ट अ फ्रेंड who has probably seen these things, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, that's it, I'm no one to that I am this, I will do that, ये वो कुछ भी नहीं है, nothing like this। कितनी सारी चीजें होती हैं यार, मैं भी फेल हो और फेल हो के तो पहुंचूंगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, आई वाज फकिंग अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल वुड थिंक। आई मीन मुझे कैसा लगेगा मैं बताता हूँ, आई वाज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि व्हाट हैपेंस इफ टुडे, और सॉरी, इफ आई डू दिस थिंग व्हाटएवर आई वांट टू डू, एक मैसेज जो भी था लाइफ में आगे मैं करना भी चाहता हूँ यंगर जनरेशन के लिए कुछ भी, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं और उसको लोगों को समझ ही ना आए, वो मैसेज जाए ही ना वैसे, या वो लोग लेना ही ना चाहे, समझना ही ना चाहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? विल आई फील बैड अबाउट इट? यस, आई थॉट आई वाज अटैच्ड टू दिस आइडिया, मुझे बुरा लगता। फिर मैं सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गया। फिर देन आई थॉट कि नहीं यार, आई मीन नहीं, आई हैव टू ओवरकम दिस, इसलिए ये वीडियो बनाया। मैं अटैच नहीं हूँ कि आप लोग देखते हो, समझते हो, सोचते हो, एंड डज नॉट मीन दैट आई फकिंग डिसरिस्पेक्ट एनीवन या आई हैव ईगो फॉर दैट, नो, just for myself, that's it, that's the purpose। और खैर इस चीज से अगर ये भी सॉल्व हो रहा है, इसका चीजें आ रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हम कुछ अलग सा, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, वी आर नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट समवन, वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग टू पोर्ट्रे समवन बैड गुड, बस सिंपल नॉर्मल चीजें बात कर रहे हैं, जैसा हो सकेगा। ना इतना अच्छा कोई कमेंटेटर है हम, ना वो है, आई मीन दिस जस्ट एन थिंग। सो यू गाइस थिंक, यू गाइस डिसाइड, एंड अगर आप लोगों में से कुछ ऐसा कुछ फेस किया है किसी ने, तो शेयर डाउन योर व्यूज इन द कमेंट्स और क्वेश्चंस, और जो भी अगर आपका है। इससे क्या होगा ना,
इस एक्सपेरिमेंट को अगर ये सही भी जा रहा होगा तो इट विल गेट द राइट स्ट्रेंथ। और गलतियां होंगी, हो सकता भी हो, तो यू आर फ्री टू राइट डाउन योर सजेशंस एंड whatever your views are about this entire thing. You want to say something? But just I'm done with the questions. बस यही था मेरा. If you want to give some kind of message to your friends, anything. Not a message, but I just want to thank you कि आपने अपना ऐसे मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, मैं जहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ, और आपने मेरे को इतना गाइड करा इस पूरे सिचुएशन के थ्रू. So thank you very much. I also appreciate and thank you so much to be that kind of honest about your feelings. And it's a pleasure and it's really a wonderful feeling to have कि यार कोई बंदा आप पे इतना भरोसा करता है. You just have to maintain that trust and he should not be let down. बस इतनी कोशिश करनी होती है. हम कोई परफेक्ट तो नहीं है कोई भी, बट हाँ कोशिश तो कर सकते हैं चीज़ों को बनाने की. पहले बेकार थी, बेहतर नहीं थी, इसके एक्सपीरियंस कोशिश तो कर सकते हैं ना, उस दिशा में मूव तो कर सकते हैं कि ऐसा कभी एनवायरनमेंट हो नहीं पाया, होते नहीं सोसाइटी में, लोग ऐसे रिश्ते नहीं होते. कोशिश तो कर सकते हैं. दैट होप, दैट ट्राई इज व्हाट वी कैन Exactly. Yes. believe into and hope for, right? So see you guys, thank you so much. I really appreciate your time and patience. अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखा है तो भी ठीक है. I think there might be something that you might decide to take on with you in your journey. Thank you so much. See you. Bye.